Hello students, in the previous video we have learned about the Newton's second law of motion, and we also derived the formula of force by using Newton's second law of motion, which is F is equal to ma. That is, m is mass and a is acceleration produced in the body. Now in this video we are trying to understand the application, that is uses of a Newton's second law of motion. And we also know that the Newton's second law of motion is F is directly proportional to delta P upon delta T. That means force is directly proportional to rate of change in momentum. Okay, if the time is increased, then the force is decreased. Okay, or if the time is decreased, then the force is increased, because both are reciprocal to each other. Now the application of Newton's first law of motion is, first application, catching a cricket ball. Okay, to catch a fast cricket ball, a player pulls his hand backward to prevent injury to his hands. By doing so, the player increase the time. Okay, जब प्लेयर जो है वो अपने हाथ को पीछे की और बैकवर्ड मोशन जो करवा रहा है, तो उसमें टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो द फोर्स इज डिक्रीज. ओके, द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द क्रिकेट बॉल रिड्यूसेस टू जीरो, सो द बॉल एक्सर्ट ए स्मॉलर फोर्स. ठीक है, जैसे ही वो अपने हाथ को पीछे करेगा तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही वो बॉल को कैच करेगा तो उसके हाथों में क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा, क्योंकि वो हाथों को पीछे करके बॉल को कैच करवाने का, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी को जीरो करवाने का टाइम को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. अगर वो टाइम को इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन इज हाई जंप. In the athlete event, high jump, the athletes are made to fall either on a cushion bed or on a sand bed. This is done to avoid injury to the athlete. Falling on a cushion bed or on a sand bed will increase the time during which high velocity of the athlete would be zero. This would decrease the rate of change of momentum of the athlete and hence the force on the athlete. That means जैसे ही वो जैसे जो एथलीट है वो बेड पे जंप करेगा, तो जैसे वो बेड पे जंप करेगा तो उसकी टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे उसका टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, थर्ड हो जाएगा यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार. Okay, all the cars these days are provided with seat belts for the passenger, which are right called safety purpose. Okay, the purpose of seat belts is to prevent injury to the passenger in case of an accident or in case of sudden application of brakes. Okay, the stretchable safety belts worn by the passenger of the car exert a force on their body. The time taken by the passenger to fall forward increase, hence the force decrease. जैसे अगर सडनली हम ब्रेक लगा देते हैं तो अगर हमारी बॉडी पे सीट बेल्ट लगी हुई है, तो जैसे हम आगे आएंगे सडनली तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी पे जो फोर्स है वो कम फील होगा. ओके, these are the uses of Newton's second law of motion. Now we will start Newton's third law of motion. From the Newton's first law we learned what is force. That means we define the force according to Newton's first law of motion. Now the second law gave us a measure of force, that means F is equal to ma, the value of force. Now Newton's third law of motion tells us about the nature of the force. What type of nature is the force? Okay, now according to this law, when an object A exert an force on object B, then the second object B exert a force back to the first object A. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. Like हम example ले लेते हैं कोई भी. आप suppose कीजिए आप दीवार को force लगा रहे हो, ठीक है, तो आप दीवार पे force लगा रहे हो तो दीवार भी आप पर force लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में बाय इक्वल मैग्नीट्यूड का. ओके, जैसे टू फ्रेंड्स है, दोनों लड़ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आपके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. जैसे हमने यहाँ दो स्प्रिंग्स ली हुई है, ए और बी ली हुई है हमने, तो अगर हम बी स्प्रिंग्स को खींचते हैं तो सेम अमाउंट का फोर्स किस पे भी लगेगा, ए पे भी लगेगा. ओके, और ये जो टू फोर्सेस है, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. द टू अपोजिंग फोर्स आर ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. एक फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन और दूसरे फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन. ओके, सपोज जैसे आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हो तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो तो हो गया एक्शन, और दीवार आप पर जो फोर्स लगाएगी उसको हम बोलते हैं रिएक्शन. ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को. एवरी एक्शन यानी जो आप फोर्स लगा रहे हो, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन कौन है, वो जो जैसे हमारे ऊपर दीवार लगा रही है, सामने वाला कोई हमारे ऊपर लगा रहा है. ओके, तो एक्शन का क्या है, हमेशा इक्वल है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, रिएक्शन होती है. ओके, दैट इज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज
ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। अगर आप 2 न्यूटन लगा रहे हो तो सामने से भी आपको कितना मिलेगा, 2 न्यूटन ही मिलेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों फोर्सेज है। ओके, एक्शन वो आप लगा रहे हो, रिएक्शन जो आपको फील हो रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। हमेशा ये बात हमें याद रखनी है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है हमेशा किस पे लगेगा, 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा। ओके, अब ये जो फिगर है इसमें हमने क्या लिया है, 2 स्प्रिंग बैलेंस A and B connected together. The fixed end of a spring balance A is attached to a rigid support. इसको हमने rigid support से कर दिया है, कोई wall ले लो, like rigid support like a wall. When a force applied by pulling the fixed end of a spring balance B to the right, हमने जो spring balance B है इसको हम क्या करें, खींच रहे हैं right से, ठीक है। Both the spring balance show the same reading. हमने जैसे ही इसको पुल किया तो ये कितना हुआ, इसने कितनी रीडिंग शो करी, स्प्रिंग ने 2 न्यूटन रीडिंग शो करी है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम रीडिंग किसने शो करी, ए वाली स्प्रिंग ने भी शो करी है, 2 न्यूटन ने शो की है, ठीक है। बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल्स। इट मींस फोर्स एक्सर्ट बाय स्प्रिंग बैलेंस बी ऑन ए, स्प्रिंग बैलेंस बी ने स्प्रिंग बैलेंस ए पर जितना फोर्स लगाया वो क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इस पर हमने 2 न्यूटन लगा के खींचा और स्प्रिंग बैलेंस ए में भी कितनी रीडिंग आई, 2 न्यूटन हो गई, यानी कि दोनों ने एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया वो क्या है, इक्वल है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हम देख रहे हैं ये इस तरफ है और वो उस तरफ है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। Now, if force exerted by spring balance B on spring balance A is called the action. B ने जो A पे लगाया वो क्या है, एक्शन है, और A जो B पे लगाएगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। Then the force exerted by spring balance A on B is called reaction. Okay. As the reading on the scales of the 2 spring balance are equal, therefore the forces of action and reaction are always equal. Okay. ये जो force है ये एक्शन है, ये जो लगा रही है वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रिएक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ second example of Newton's third law of motion, sorry, first example of Newton's first law of motion is walking. Okay, जैसे ही हम वॉक करते हैं तो हमने देखा है कि हम हमारे पैरों को, एक पैर को पीछे करते हैं और एक पैर को हम पीछे करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ओके, तो हम जो हमारे पैरों से ग्राउंड पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्शन। फिर ग्राउंड हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, इससे हम क्या होते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो हम देखते हैं क्या है, वॉकिंग, टू वॉक ऑन अ ग्राउंड वी पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। हम हमारे पैरों से ग्राउंड को क्या करते हैं, पीछे करते हैं। विद आवर फुट एज अ रिएक्शन द ग्राउंड पुशेस आवर फुट फॉरवर्ड विद द सेम फोर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं वो हो जाएगा एक्शन, और ग्राउंड हमारे ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो हो जाएगा रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल है हमारा स्विमिंग। स्विमिंग करते हुए आपने देखा होगा, आप अपने हाथों से पानी को क्या करते हो, पीछे की ओर करते हो, वाटर को हम पीछे की ओर करते हैं, तो वो हम पानी पे जो कर रहे हैं वो तो हो जाएगा एक्शन, और पानी जो हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा रिएक्शन, सो दैट हम स्विम कर पाते हैं। तो स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद हिज हैंड्स एंड फीट, तो वो जाएगा एक्शन। द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड विद द सेम फोर्स, दिस इज द रिएक्शन। नाउ थर्ड एग्जांपल, मेन एंड बोट। ओके, सपोज किसी मेन को बोट से जंप करना है, ओके, बैंक की तरफ, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो बोट पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, वो जाएगा एक्शन, और बोट जो है उस पर रिवर्स में फोर्स लगाएगी, वो जाएगा रिएक्शन। कैसे, द सेलर वांट्स टू जंप फ्रॉम द बोट टू द रिवर बैंक, द बोट इज पुशेस अवे फ्रॉम द बैंक, so this happens due to equal forces of action and reaction. Now the next example of Newton's third law of motion, recoiling of gun. आप यहाँ गन देख रहे हैं, दिस इज द बुलेट, ठीक है। जैसे ही हम गन से बुलेट को फायर करेंगे तो हमें गन पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स जो होगा उसकी वजह से बुलेट क्या होगी, आगे निकलेगी। तो जो बुलेट का आगे निकलना होगा वो तो हो गया एक्शन, और जैसे ही हम शोल्डर पे रख के गन को चलाते हैं तो हमारे शोल्डर पे क्या फील होता है, कुछ जर्क फील होता है, वो जर्क क्या है, हमारे शोल्डर के ऊपर क्या है, रिएक्शन है। ओके, तो हम ऐसे कह सकते हैं, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन the gun recoils, that is the gun moves backward through a small distance, giving jerk to the shoulder of the gunman. Okay, now the gun exerts the same force on the bullet, that is action, in forward direction. In turn the bullet exerts an equal force on the gun, that is reaction, in the backward direction. बुलेट आगे हो गई, ये हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्शन हो गया, और हमारे शोल्डर पे जो जर्क फील हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द रिएक्शन। ओके, सो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दिस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। ओके, इन अ रॉकेट हमने देखा है कि जो रॉकेट है जब भी वो फ्लाई करता है तो उसके पीछे से क्या निकलती है, हॉट गैस निकलती है। अगर ये गैसेस नहीं निकलेगी तो ये रॉकेट आगे फॉरवर्ड मोशन
मोशन नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर जो फ्यूल प्रेजेंट है वो फ्यूल क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है, तो वो बर्न हो रहा है तो ये हॉट गैसेस निकल रही है इसके से। ओके, तो ये हॉट गैसेस जो निकल रही है वो किसकी तरफ वर्क कर रही है, एक्शन की तरफ वर्क कर रही है। अगर ये हॉट गैसेस निकलेगी तो जेट प्लेन जो है या रॉकेट है वो क्या करेगा, आगे की ओर मोशन करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये हॉट गैसेस इसमें से नहीं निकलेगी तो एक्शन नहीं होगी, तो ये रॉकेट भी आगे मोशन नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इन अ रॉकेट द फ्यूल बर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ अ हॉट गैसेस, दिस इज द एक्शन। एज अ रिएक्शन द रॉकेट मूव्स अपवर्ड विद द सेम force, that is the reaction. Okay, similarly in a jet plane the burnt gases rushes out of a jet at the back end of the aircraft. As a reaction the jet planes moves forward with an equal force.